15 नंबर वार्ड में यहाँ के तृणमूल प्रत्याशी श्याम सोरेन जी से जब हम बात कर निकले तो हमें कुछ महिलाएं मिली, तो सोचा कि क्यों ना उनसे बात किया जाए कि उनके वार्ड में क्या कुछ चल रहा है, क्या उन्नति का काम हुआ है और श्याम सोरेन जी ने उनका कितना साथ दिया है। तो नमस्कार दीदी, केमन आছেন আপনি? यहाँ पर वार्ड नंबर 15 में आपको अभी तक क्या क्या उन्नति दिख रहा है? উন্নতি এখানে অনেকই হয়েছে, সুবিধা হচ্ছে যে স্যামসং আমাদের ঘরের পাশে, মানে কিছু অসুবিধা সুবিধা মানে হলে আমরা ফট করে আসতে পারছি, স্যামসংকে বলতে পারছি, স্যামসং আমাদের তাড়াতাড়ি যে আমাদের মানে ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, মানে তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে সুবিধা হচ্ছে, সবই রকম পাচ্ছি সাহায্য স্যামসংয়ের কাছে আমরা। কলের জল হচ্ছিল, এখন 2 টাইমে কলের জল দিচ্ছে, অ্যাভেলেবেল জলের জন্য খুবই অসুবিধা হতো, ওইখানে যেতাম আমরা জল আনতে, সেই জলের সুবিধা হয়েছে। তারপরে হয়তো কোনো কাগজপত্র কিছু লেখালেখির জন্য তাড়াতাড়ি আসতে পারছি, রান্না ছেড়ে দিয়ে এসে পরে এখানে কাগজগুলো করে দিয়ে দিচ্ছে, ছেলে মেয়েদের স্কুলের লেখাপড়া সবই সুবিধা অসুবিধার জন্য এখানে সবই ঠিকই হয়েছে। তারপরে আমরা কোথাও যেতে কোনো লেখালেখির জন্য বাইরে যেতাম, তখন এখন এখানে ঘরের দুয়ারে হয়েছে, সেই জন্য এখানে আসছি, আমরা দেখছি। তারপরে হয়তো লাইটের জন্য আর জন্য সবই জন্য বলেছি, বলছে হ্যাঁ সব এগুলো ঠিকই করে দেবো, সব ড্রেনের জন্য জলের জন্য সব সুবিধা हो गई। यहाँ जहाँ अभी आसनसोल नगर निगम के कई वार्डों में पानी की थोड़ी बहुत अभी समस्या देखने को मिल रही है, वहीं 15 नंबर वार्ड में लोग पानी की जो मात्रा है उससे सेटिस्फाइड है, उससे संतुष्ट है, क्योंकि 2 टाइम यहाँ पानी दिया जा रहा है। अच्छा, आप बात करते हैं दुआरे सरकार का जो योजना है वो कितना आप लोगों को लाभ मिला है, क्या हुआ है, कौन बताएंगे आप? দুয়ারে সরকার হ্যাঁ পেয়েছি আমরা লক্ষ্মী ভান্ডার টাকা ঢুকছে, হ্যাঁ মাসের মাসে ঢুকছে টাকা। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড সব হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনারা মানে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কি আছে এখানে? হ্যাঁ ভালো, লেখাপড়া ভালো, মানে এখানে লেখাপড়া ছেলেদের জন্য সবই সুবিধা হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে একটা অসুবিধা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এখন এখানে হয়নি সামনে কোথাও। তারপরে যে ছেলেদের যে খিচুড়ি ডিম যে স্কুল হয় সেটা মানে আমাদের এখন এখানে মানে এখানে হয়নি, অন্য ওয়ার্ডে হয়েছে, মানে এখানে হয়নি এখনো। मतलब यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की अभी आवश्यकता है। হ্যাঁ जी, মানে যে বাচ্চাদেরকে যে প্রেগনেন্ট মেয়েদেরকে স্কুলে খিচুড়ি ডিম যেটা দেওয়া হয় সেটা আমাদের এখানে এখনো হয়নি এটা। আইসিডিএস সেন্টার দরকার আছে। আচ্ছা, আর কিছু অন্য চাহিদা? না, অন্য চাহিদা সব তো করে দিয়েছে স্যামসনের, অনেক যতটুকু পেরেছে 5 বছরে করেছে, আরও যদি মানে এবছর হয় তো আরও মানে আরও উন্নতি করবে। আমাদের শ্যাম থাকলে আরও সুবিধা, আমাদের আরও দরকার, মানে ওই আমাদের সামনের ওই যে লাইটগুলো লাগাতে হবে, আর ওই রোডটা আমাদের অসুবিধা, রোডটা আমাদের বানাতে হবে, ঢালাই রোড করতে হবে। আচ্ছা, কি লাগছে কে হবে এবার পার্ষদ 15 নম্বর ওয়ার্ডে? স্যামসংই হবে, স্যামসংই হবে। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगर निगम चुनाव। हालांकि आसनसोल नगर निगम चुनाव के दौरान कोविड ने थोड़ा सा इस रंग को फीका करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उत्साह में कमी नहीं देखी गई और लोगों के इसी उत्साह को लेकर आज हम लोग पहुंचे हैं 15 नंबर वार्ड और हम बात करेंगे यहाँ के टीएमसी पार्षद उम्मीदवार श्याम सोरेन जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, चुनावी माहौल बन चुका है, लोग जितने भी प्रत्याशी हैं सभी प्रचार कर रहे हैं, आप भी प्रचार में उतर चुके हैं, लोगों का भी रिस्पांस कैसा है? देखिए, रिस्पांस बोलने का यही हम बोलेंगे कि यहाँ पर मेरा जन्मभूमि है, तो मैं यहाँ 5 साल काम भी कर चुका हूँ, ये मेरा दूसरे बार हम निर्वाचित हुए हैं, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मेरा हर घर से हर परिवार से मेरा अपना जुड़ाव है, तो इसमें कोई असुविधा का बात नहीं है। चुनाव जैसे चलेगा वो तो चलेगा ही, साथ साथ में तो हमारा जो 365 दिन 24 आवर्स जो काम रहता है आदमी से जनसंपर्क रहना, वो मेरा है और हमेशा रहेगा। इस दौरान आप जो 5 साल यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं, क्या कुछ काम हो चुका है यहाँ? बहुत सारा काम हुआ है। काम देखिए, इस एरिया 15 नंबर वार्ड में ये जो कॉर्पोरेशन जब से नया गठित हुआ है, रानीगंज कुल्टी जामुड़िया जो डिवाइडेशन होने के बाद, पहले पुराना 31 था 32, अभी नया होने के बाद 15 नंबर हुआ है, तो 15 नंबर वार्ड में आप देखिएगा बहुत सारा प्रॉब्लम था, ज़्यादा से पानी का प्रॉब्लम था। इस जो गांव इलाका था, आप मौजूरी से लेके केडीसीएम से लेके काटागोड़िया से लेके आप सैंडल तक अप टू पोलासडिया से लेके पानी का कोई सोर्स नहीं था। जो मेरा पहला काम था, हम उस इलेक्शन चुनाव में पहले हम बोले थे कि हम जैसे भी हो पानी का व्यवस्था हम करेंगे, तो हम यहाँ का जो विधायक मलाई घटक उनको अनुरोध करके हम लोग जो कॉर्पोरेशन में रिजर्वर बना है, रिजर्वर बनाने के बाद जो इस इलाका में पानी का सप्लाई हुआ है, आज देखिए हर गांव में लेकिन पानी का समस्या हल हो गया। वो अभी नहीं रहा पानी का कोई, हाँ अभी फिलहाल एक ही तो मेरा काम है पानी हर हर घर में पहुंचाना है, तो ऐसे हम स्ट्रीट टैप हर गली में दे दिए हैं। अभी इस इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हम मेरा एक ही टारगेट है, वो हर घर में हम कनेक्शन हम दे देंगे।
सड़क और बिजली की कैसी स्थिति है? देखिए बिजली के आप अगर हम जब काउंसलर चुनाव हुए तो 2015 में, तो आप अगर इधर आए हुए अगर आप पहले कभी आए थे तो आप देखे होंगे कि ये मेरा 15 नंबर वार्ड में हम जहाँ रहते हैं ये पूरा इलाका अंधकार था, कोई लाइट का व्यवस्था नहीं था। यहाँ आदमी आने से डरता था कि शाम को हजारों से हम काउंसलर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन आफ्टर 6 मंथ हम 2015 इलेक्शन चुनाव के बाद हम यहाँ पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिए हैं। वो हम लोग कॉर्पोरेशन से किए हैं। यहाँ से लेके आप नौडिया तक कोई भी जगह मेन रोड हम कहीं भी लाइट नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ पूरा हर गांव में हम लाइट दे दिए। अभी कोई गांव में भी ऐसा कोई असुविधा नहीं कि लाइट नहीं है। अभी कुछ काम है जैसे कि आप जानते हैं ये जो बाढ़ आया, बाढ़ में बहुत सारा रोड डैमेज हुआ है, ज़्यादातर तो सोरागडी वाला, सोरागडी जो रोड तो बहुत डैमेज हो गया। तो वही अब मेरा मेन इशू होगा आफ्टर इलेक्शन, हम जब जीत जाएंगे तो उसके बाद हम वही मेरा काम रह गया है, तो उसको हमको काम करना है। इधर इन क्षेत्रों में कच्चे मकान भी देखे जा रहे हैं, तो उसकी देखिए क्या कच्चे मकान की बात सही है, लेकिन आप अगर ठीक से सर्वे कीजिएगा, यहाँ ज़्यादातर सबसाइड एरिया है जो कि अंदर कोल माइन्स है, यहाँ का कोल माइन भी हुआ करता था। तो उसकी वजह से यहाँ जितना ओनर है ज़मीन का सब इसीएल या तो कोई वेस्टेड ज़मीन के ऊपर है, तो ये ज़मीन का इशू प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। तो इसको हम लोग सरकार के पास दरख्वास्त रखा है, हम लोग का मंत्री मिलाई घटक वो भी देख रहा है। उनका अभी चेष्टा चल रहा है कि यहाँ का आदमी जितना है ज़मीन को कैसे उन लोग को दिया जाए और सेफ का आदमी को कैसे सेफ जगह में रखा जाए, उस कोशिश चल रहा है। तो सरकार से हम इलेक्शन के बाद भी हम वही मेरा एक तो टारगेट रहेगा कि यहाँ का ज़मीन जो सरकारी ज़मीन पे 50 साल 60 साल 70 साल से यहाँ पर रह रहा है उन लोग को पट्टा दिया जाए, बस यही मेरा काम बाकी है। ये द्वारे सरकार योजना के तहत कई सारे स्कीम्स है जो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपके वार्ड में कितने लोगों को लाभ मिला है? देखिए मेरा वार्ड में 90% हम लोग जो लक्ष्मी भंडार है स्वास्थ्य से देगा 90% आदमी को हम पहुँच दिए। मानिए 10% जिसके डॉक्यूमेंट्स भूल हो सकता है, वैसे कोई मेरे पास कंप्लेन नहीं है। अभी तक मेरे पास जो है 30 से 40 आदमी का डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है लक्ष्मी भंडार का, जिन लोगों को अभी तक कोई मैसेज या तो पैसा अभी तक नहीं आया, तो वो भी हम एसडीओ पास दे दिए हैं। एसडीओ बोला हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, शायद वो भी इलेक्शन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे कोई बात नहीं है कि स्वास्थ्य साथी प्राय 90% हम लोग करवा चुके हैं। फिर नया नया जो हो रहा है वो तो फिर दोबारा सरकार होगा फिर अप्लाई करेगा, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो तो चलते रहेगा। तो मेरा जो काम था एक नागरिक परिसेवा जो मेरा अधिकार है देने के आदमी को, तो हम वो पूरा कर चुके हैं। जितना गवर्नमेंट स्कीम है, चाहे सामाजिक सुरक्षा योजना हो, चाहे हेल्थ कार्ड हो, चाहे रूपश्री हो, आप देखिएगा मेरा वार्ड में सबसे ज़्यादा रूपश्री लाभ हुआ है। जितना लड़की का शादी हुआ है सबसे ज़्यादा मेरा वार्ड में हुआ। तो गवर्नमेंट की स्कीम का जितना भी आता है हम लोग का कॉर्पोरेशन के माध्यम से, तो हम उनको इम्प्लीमेंट हर द्वार में हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सर, नागरिक सेवा के तहत आप इस वार्ड में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या देखते हैं जो आपके द्वारा हुई है? देखिए नागरिक परिसेवा में ज़्यादातर तक आप जानते हैं कि यहाँ बेशिरभाग ग्रामीण इलाका में है, तो ग्रामीण इलाका में उत्सव जो भी हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, मुहर्रम हो, या हम लोग आदिवासी का बादना उत्सव हो, जो भी एक तो अलग सा उत्साह रहता है। तो वो उत्साह में हम हर तरह का जो सेवा होता है हम करते हैं। कहीं पानी का ज़रूरत है, टैंकर से हम पानी दिलवा देते हैं। कहीं साफ़ सुथरा का ज़रूरत है, हम खुद जाकर साफ़ सुथरा करवाते हैं। कहीं ड्रेन का लाइट नहीं जल रहा है कोई गांव में, जैसे कल ही हम काटागुड़िया में देखिएगा, बहुत दिन से उन लोगों का कंप्लेन था कि हम लोग बादनापुर में हम लोग स्ट्रीट लाइट ठीक से नहीं जलता था, लेकिन वो कॉर्पोरेशन से पास होने के बाद कल पूरा जगह में एलईडी लगा दिया गया है। तो वो एलईडी अभी कल हम रात को गए थे वहाँ पर, रात 9 बजे हम गए थे, बुलाया था वहाँ का आदमी लोग, तो हम देखा सच में काटागुड़िया का नहीं पहचान सकेगा। रात में आगे घूमिएगा वहाँ पर पूरा लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। वो लोग बोल रहा है कि कल हम एक तो आदमी बोला वहाँ का कि यंग लड़का है 26, वो काम करके आया था। तो एक वो बोला जब हम गया वहाँ पर तो काम करके वो बोला कि देखिए हम जब नौकरी करके आ रहे हैं तो हमको लग रहा है मेरा घर में कोई उत्सव हो रहा है, कोई बाजा बढ़ रहा है, इतना लाइट कहाँ से आ गया। तो ये जो आदमी का अनुभूति, उत्साह, ये प्यार हमको बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस बार भी पार्षद चुने जाते हैं, अगर जनता का प्यार आपको मिलता है, तो आपका नेक्स्ट महिलाओं के लिए क्या टारगेट हो सकता है? सुरक्षा या तो महिला के लिए चिंता भावना। अभी बहुत सारे महिला हम लोग ज़्यादा देखिएगा, हम लोग गाँव वाले में ज़्यादातर का लड़की लोग उठ के आ रही है, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आज स्कूल में पढ़ाई करने का उत्साह किसने दिया ना, हम लोग माननीय ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री, जो कन्याश्री के माध्यम में जो लोग को 25,000 रुपये मिलता है, उस मास के माध्यम से फिर सबूत साथी साइकिल मिलता है, फिर अभी किताब सब फ्री मिल रहा है। जो उत्साह मिल रहा है महिला के आगे आने के लिए, इन फ्यूचर में उन लोग को अच्छा जाएगा में
तो कोई बीए कंप्लीट करे, बीएससी कंप्लीट करे या एमएससी कंप्लीट करे, अच्छा जगह में जाने के लिए, ये पढ़ाई की कोई असुविधा ना हो। तो लड़की लोग बहुत सारे हम देखते हैं, हम यहाँ ऑफिस में बैठते हैं तब हम देखते हैं कि 10 बजता तो लड़की 10-15 भी एक गुड होकर साइकिल लेके सबूत साथ साइकिल लेके स्कूल में जाए। वो जो अनुभूति हम लोग, तो सोशल डेवलपमेंट के लिए महिला को आगे आने जरूरत है। और जो महिला आगे आ रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमको जो अच्छा हमसे जो मदद चाहिएगा महिला को, हम हर तरफ के लिए रेडी है। हम यहाँ पर गांव में ज़्यादा से समस्या होता है क्या कि महिला पर अत्याचार, आप तो मीडिया के माध्यम हम बोलना चाहते हैं महिला का अत्याचार, ये अभी हम लोग का गांव तरफ पूरा कम हो गया है। पहले क्या होता है, कोई दारू पी के या तो कोई अशिक्षित मनुष्य आदमी क्या करता, अपने बीवी को पीटता, बाल बच्चे को काम में भेज देता। अभी वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अभी यहाँ पर जो आदमी है वो भी काम कर रहा है, जो महिला है वो सेल्फ डिपेंड होकर काम कर रहा है, चाहे कोई किसान में हो, कोई किसी का घर में हो, कोई भी करके काम कर। या तो स्वनिर्भर गोष्ठी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हम लोग कॉर्पोरेशन, उसमें भी नाम लिखा गया है, उसको भी हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं। तो विभिन्न जो बहुत सारे स्कीम है उसके साथ जुड़ा हुआ है आदमी, तो हम लोग को कोई असुविधा नहीं है। और यहाँ महिला का सुरक्षा तो ऐसे हम लोग है ही है, उसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। शिक्षा को कहाँ देखते हैं आप इस वार्ड में? नहीं, शिक्षा को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, एक तो डेवलपमेंट के लिए, जैसे आपका सोशल डेवलपमेंट के लिए जैसे रास्ता, ड्रेन, नाली, एक तो नागरिक के होना वो तो चाहिए, लेकिन शिक्षा मुद्दा का हम प्रायोरिटी देंगे। अगर शिक्षा रहेगा तो आपका सोसाइटी और ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। इसलिए कि शिक्षा हम लोग का ट्राइबल बोलिए या तो गांव वाला एरिया में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कहें कि अब पूरा देश में जैसे उन्नति और अग्रगति हो रहा है, उसके साथ आपको चलने के लिए शिक्षा मेन मुद्दा है। और हम ये बार बार हम अपना इलेक्शन कैंपेन हो या तो जिसका द्वार में जाते हैं, हम बार बार यही आदमी को बोलते हैं, कोई भी पढ़ाई के लिए कोई भी असुविधा हो, चाहे किताब का हो, चाहे स्कूल का एडमिशन फीस का हो, कोई भी उसको लिए हमको ना बेझिझक होकर हमको बोलिए, हम लोग जो करेंगे हम लोग उसको जैसे तैसे करके हम लोग सॉल्व करके उसको हमको पढ़ाना है। हम हर घर में यही एक तो मुद्दा बोलते हैं कि देखिए हम लोग भी गरीब घर से उठे हैं। हम लोग देखे हैं, हम लोग का पिताजी दादाजी कैसे खेत में काम करके हम लोग पिताजी के लोग बड़ा हुए हैं। तो हम लोग खुद खेत में हम लोग मजदूरी का काम किए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कष्ट क्या होता है। अगर शिक्षा मिला तो बहुत सारा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि नहीं, शिक्षा जरूरी है। पार्षद निर्वाचित अगर आप होते हैं तो एक अलग जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये तो बुनियादी सुविधाएं तो करना ही होता है एक पार्षद को, लेकिन उससे कुछ अलग अगर आप सोच रहे हैं तो वैसा कुछ विचार है? हाँ, जरूर है। यहाँ का कम्युनिटी डेवलपमेंट का जरूरी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब क्या है, हम लोग का अभी भी कुछ ज़्यादा गांव तरफ है, अभी भी कुछ जागरूक की जरूरत है। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर महिला, आदिवासी महिला अभी भी तालाबों की तरफ शौचालय करते हैं, ठीक है। उसको रोकने के लिए हम लोग को कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब कम्युनिटी शौचालय या तो कम्युनिटी हॉल, बहुत सारे चीज़ काम करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक तो खराब लगता है अभी भी इस ज़माने के युग में कि शौचालय बाहर करना जाना पड़ता है अभी हम लोग को महिला को, तो हम लोग को देखने में खराब लगता है। तो यही मेरा मुद्दा है कि अगले बार हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो बहुत सारे गाँव है ऐसे जो हैबिट भी बोल सकते हैं, अनहैबिट भी, लेकिन आदमी मजबूर से जाता है। तो हम सोचें अभी अगर बाथरूम का कोई स्कीम होगा तो हम बाथरूम जितना, हम तो ऐसे 1700 बाथरूम किए हैं अपना वार्ड में, फिर भी हम देखते हैं बहुत सारा आदमी नहीं कर पाए किया हुआ। तो वो मेरा मुद्दा है कि अगला बार हम जब जीत के आएंगे तो हर गांव में हम एक टुकड़ा कम्युनिटी टॉयलेट हम जरूर करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग से आप 15 नंबर वार्ड अगर सोचिएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी एक तो हेल्थ सेंटर है जो लाल बांग्ला काली मंदिर के पास है, RCI उत्तर धात का हेल्थ सेंटर के नाम पे जाना जाता है। तो हेल्थ सेंटर मेरा यहाँ गांव वाला आदमी है, जैसे एक गांव यहाँ से जाने के लिए 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि गांव के अंदर भी एक तो होना चाहिए हेल्थ सेंटर। क्या है कि मेन रोड में आपको जब जाते हैं आदमी, यहाँ का आने जाने का बहुत सारा तकलीफ होता है कि कोई डिलीवरी पेशेंट हुआ जैसे उसको गाड़ी से के जाना पड़ता है। तो हाँ, ये भी एक तो मुद्दा है कि हम लोग गाँव वाले से हम जब भी बात करते हैं कि आपको हम लोग को बहुत सारा डिमांड आता है कि एक तो गाँव के अंदर भी एक तो हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो उसके लिए ज़मीन भी चाहिए, तो ज़मीन का सर्वे भी चल रहा है। तो हम लोग ज़मीन के सर्वे चल रहा है अभी। अगर ज़मीन मिला, सरकारी ज़मीन अगर मिला तो हम ऑलरेडी पिछला बोर्ड में हम एक तो चिट्ठी दिए थे, रिक्वेजेशन दिए थे एक्स मेयर को। तो एक्स मेयर हमको बोले थे आप ज़मीन ठीक करके रखिए, आपका अगर वहाँ हेल्थ सेंटर प्रोविजन है हम लोग करेंगे। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, यहाँ पर तो हॉस्पिटल भी है, आसनसोल
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी जी तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ हेल्थ के लिए। हम लोग को कोई भी मेजर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं पेशेंट को। तो बहुत सारा फैसिलिटी भी मिलता है। और हेल्थ कार्ड से हम लोग को यहाँ नर्सिंग होम जितना है सब नर्सिंग होम में पेशेंट भी लेता है। वैसे हम भी जब बोल देते हैं कि यहाँ से एक तो पेशेंट गया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, तो मिलता है वो सुविधा। और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट का बात है, जैसे हमको डिलीवरी पेशेंट का हो या तो कोई प्राइमरी दुर्घटना घट गया उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट की ज़रूरी है, तो लोकल में एक तो चाहिए। गांव तो वो डिमांड रहेगा ही। तो हम भी कोशिश करें सही जगह में ज़मीन लेके खोज के सरकारी ज़मीन पर हम वो काम करेंगे। जी। तो ये तो रही आपके जो भी मुद्दे हैं उन पर बातें। अब अगर राजनीति पर आते हैं तो इस वार्ड में ऐसा कौन है प्रत्याशी जो आपको श्याम सोरेन को टक्कर दे सकता है? टक्कर तो अभी देखिए हम बोल लेंगे कि राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा वार्ड में आप देखिए जो कैंडिडेट दिया गया है, एक तो बीजेपी जो ऐसा कैंडिडेट दिया है जो ना आदमी से जान पहचान ना गांव का नाम जानता है। हम अगर बोले हम बड़िंगपड़ा में केडीसी में हम रहते हैं तो उसको पूछेंगे कि मेरा पोस्ट ऑफिस कहाँ है, वो शायद नहीं बोल पाएगा। तो ऐसा कैंडिडेट को यहाँ दिया गया है। यहाँ का जो गांव है, कितना गांव है, कितना गली है, कितना आदमी का आवास है, किसी से जान पहचान नहीं है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो तो आप लोग भी जानने होंगे कि वो एक टाइम हम एक्स मेयर जो थे उनका ऑफिस में वो काम करता है, तो उसको यहाँ से टिकट दिया गया है। तो हमको अबक लगता है यहाँ का जो बीजेपी कर्मी कार्यकर्ता था तो उन लोग को मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने के, शायद उन लोग को भरोसा नहीं किया। लेकिन आज आप लोग को एक ठोस हम खबर देना चाहते हैं आप लोग को कि यहाँ लोकल का जितना बीजेपी कार्यकर्ता था आज 9:30 बजे 10 बजे देखिए सब मेरा टीएमसी में शामिल होने वाला है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग का टीएमसी का जो डेवलपमेंट, हम लोग का जो एक ही मोटो है सबको लेके काम करना, कोई भी डेवलपमेंट काम हो तो उसके साथ जुड़ने के लिए आज बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता आज हम लोग के साथ आने वाला है। तो बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है, तो आने वाला उसको तो हम लोग विधानसभा चुनाव में डस्टबिन में फेंक दिया है। और देखिए उसके बाद वो साइन बोर्ड हो जाएगा, उसको कहीं भी नहीं मिलेगा बीजेपी करते 15 नंबर। और जहाँ रहा सीपीएम कांग्रेस, सीपीएम का हम तो पहले बोले वार्ड डिवाइडेशन होने के पहले यहाँ 31-32 था, यहाँ सीपीएम का काउंसिलर था, यहाँ कांग्रेस का भी काउंसिलर था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ इफेक्टेड नहीं है, क्या कि यहाँ सीपीएम का काउंसिलर देखा था, हम भी सफ़र हुए हैं उसमें, देखे हैं कि सीपीएम के काउंसिलर को खोजने से भी नहीं मिलता था। और डेवलपमेंट तो छोड़िए, डेवलपमेंट तो कुछ किया ही नहीं। आज सैंडल का जो पानी का अवस्था है, सैंडल का दूसरा पानी का सोर्स कोई नहीं सोचा था। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम हम जब 2015 में हमको चुनाव में जीता गया, हम मेरा वही टारगेट था सैंडल में पानी कैसे दिया जाए। आज अगर जाइएगा 10-12 दिन का पानी मिलता है, लेकिन उसका कारण है सीपीएम का दूसरा कोई सोच नहीं था। लेकिन उसको हम परमानेंटली सॉल्व किए। क्या किए कि वहाँ पर रिजर्वर बना के हर ब्लॉक में हर गली में हम अपना कॉर्पोरेशन का पाइपलाइन बिछवा दिए, एसडीओ से परमिशन लेके। जहाँ के आप जानते हैं जो ब्लॉक का अंडर है वो हाउसिंग बोर्ड के अंडर में है, तो हम लोग एसडीओ से परमिशन लेके हर ब्लॉक में हम लोग का कॉर्पोरेशन का पाइपलाइन दे दिए। ये सब भी सोच रखना चाहिए था सीपीएम को, तो वो सब नहीं किया है। हमको सब जो भी करना पड़ रहा है नया से करना पड़ रहा है। आज वहाँ का सैंडल के पानी का अवस्था 2 दिन में शायद चार्ज भी हो जाएगा, टेक्निकली प्रॉब्लम के लिए अभी चार्ज नहीं हुआ, 2 दिन में शायद पानी का चार्ज भी हो जाएगा। आजकल का ज़माना है, सब एंड्रॉयड का जुग है, अब टेक्निकली सब डेवलप हो रहा है, सबका हाथ में 10,000 20,000 का मोबाइल है, तो आदमी सब समझ रहा है। तो वैसे कोई सीपीएम कांग्रेस भी फैक्टर नहीं है, चुनाव लड़ना है जो फॉर्मेलिटीज़ है इसीलिए वो लोग खड़ा है, तो उसके लिए मेरा रिस्पेक्ट है। चलिए आप लोग खड़ा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कैंडिडेट मेरा इफेक्टेड नहीं है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे आधार से जुड़े नेता जो है वो जनता का प्यार उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करके मिले। तो ये थे 15 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम सोरेन जी, जिनकी ये इच्छा है कि उनके क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाए और गांव ग्राम इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए। हालांकि पहले से भी शौचालय मौजूद है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई जाए। मैं बंगावास से श्वेता पांडे, नमस्कार। नमस्कार, मैं श्याम सोरेन आसनसोल नगर निगम के 15 नंबर वार्ड से सेकंड बार मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी हिसाब से। तो आप सबसे विनीत अनुरोध करता हूँ, आप जोड़ा फूल में हमको आशीर्वाद कीजिए, हम विपुल वोट्स में हमको जय युक्त करके हमको कॉर्पोरेशन भेजिए।